Hello students. Today we will discuss about types of PCR. PCR, polymerase chain reaction. What is the uses of that PCR? So we will discuss about the types of PCR. These are the types of PCR. This is the list of the PCR. How many types of the PCR you can see here. Now I am coming one by one on the types of the PCR. Number 1, amplified fragment length polymorphism, AFLP PCR. It is a PCR based technique that uses selective amplification of a section of digested DNA fragments to generate unique fingerprints for genomes of interest. तो यहाँ पर हम जो भी इंटरेस्ट के जीनोम्स होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स पर काम करते हैं. ये पीसीआर जो है उन पर काम करता है. दिस टेक्निक कैन क्विकली जनरेट लार्ज नंबर्स ऑफ मार्कर फ्रेगमेंट्स फॉर एनी ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ द जीनोमिक सीक्वेंस. AFLP PCR uses restriction enzymes to digest genomic DNA and allows attachment of adapters to the sticky ends of the fragments. AFLP PCR is employed for a variety of applications as to assess genetic diversity within species or among closely related species, to infer population level phylogenies and biogeographic patterns, to generate genetic maps and to determine रिलेटेडनेस अमंग कल्टीवार्स. तो ये इसके यूजेस हैं जहाँ पर इस पीसीआर को यूज़ किया जाता है. सेकंड नंबर पर आता है एलील स्पेसिफिक पीसीआर. एलील स्पेसिफिक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ASPCR is a technique based on allele specific primers which can be used to analyze single nucleotide polymorphism. यहाँ पर ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो प्राइमर्स यूज़ किए जाते हैं यानी जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स यूज़ किए जाते हैं दैट आर द एलील स्पेसिफिक प्राइमर्स, जिनको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा एनालाइज करके उनका इस्तेमाल करते हैं. The allele specific PCR is also called the amplification refractory mutation system, ARMS PCR, corresponding to the use of two different primers for two different alleles. तो यहाँ पर दो जो प्राइमर्स जिनका हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट एलील्स के लिए काम करते हैं. इट इज़ वाइडली अप्लाइड इन द सिंगल जीन पॉइंट म्यूटेशन डिटेक्शन सच एज सिकल सेल एनीमिया एंड थैलीसेमिया. It is also used for the direct determination of ABO blood group genotypes. तो यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है स्पेशली सिकल सेल एनीमिया का डिटेक्शन करने के लिए और थैलीसेमिया का डिटेक्शन करने के लिए. नेक्स्ट है LUPCR. LUPCR is a rapid and easy DNA fingerprinting technique based on the simultaneous analysis of many genomic loci surrounding by LU repetitive एलिमेंट्स. तो इस पीसीआर का यूज़ जो है ज़्यादातर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में किया जाता है क्योंकि ये बहुत आसान है और इसको हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाए हैं, 2 वीडियो हैं, उनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है और कैसे वहाँ पर पीसीआर का यूज़ किया जाता है. LU elements are short stretches of DNA initially characterized by the action of the Arthrobacter luteus restriction endonuclease. तो यहाँ पर जब हम DNA को इनिशियली कट करते हैं और काम में लेने के लिए स्पेसिफिक DNA को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा. वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो है आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. LU elements are one of the most abundant transposable elements and found throughout the human genome, and they play a role in the evolution and have been used as genetic markers. तो LU के नाम पर ही आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस के नाम पर ही हम इसको क्या कहते हैं, LUPCR कहते हैं. LU insertions have been used in several genetically inherited human diseases and various forms of cancer. Thus, this PCR plays an essential role in the detection of these diseases and mutations. तो यहाँ काफ़ी सारी diseases जो हैं, जो humans diseases हैं, उनमें इस PCR का यूज़ किया जाता है क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि बहुत इजी है ये DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में इसको काम में लिया जाता है.
तो बहुत सारी ह्यूमन डिजीज़ेस के लिए भी और इवन कैंसर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और इससे बहुत सारी डिजीज़ेस और म्यूटेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। नंबर 4 है असेंबली पीसीआर। Assembly PCR is a method for the assembly of large DNA oligonucleotides from multiple shorter fragments। यहाँ पर जो DNA प्राइमर्स यूज़ किए जाते हैं, जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? मल्टीपल शॉर्टर फ्रेगमेंट्स होते हैं। In PCR, the size of oligonucleotides used as 18 base pairs, while in assembly PCR, length of up to 50 base pair are used to ensure correct हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हम ज़्यादातर जो पीसीआर में ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं वो करीब 50 बेस पेयर्स लंबे होते हैं, लेकिन इस पीसीआर के अंदर जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स प्राइमर यूज़ किए जा रहे हैं उसमें केवल 18 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि ये बहुत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। During the PCR cycles, the oligonucleotides bind to complementary fragments and then are filled in by polymerase enzyme. Assembly PCR is used to improve the yield of the desired proteins and can also be used to produce large amounts of RNA for structural or biochemical studies। तो इसका इस्तेमाल जो है वो डिज़ायर्ड प्रोटीन्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है और ये लार्जर अमाउंट्स जो है आरएनए का बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और बायोकेमिकल स्टडीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है नंबर 5, एसिमेट्रिक पीसीआर। Asymmetric PCR is a variation of PCR used to preferentially amplify one strand of the original DNA more than the other. Asymmetric PCR differs from regular PCR by the excessive amount of primers for a chosen strand। अब यहाँ पर क्या है, जो प्राइमर्स हम यूज़ करते हैं वो कैसा है? एक्सेसिव है। एक्सेसिव यानी उसमें बेस पेयर्स की संख्या जो है वो अधिक होती है, उसको हम चूज़ करते हैं इस पीसीआर का यूज़ करने के लिए, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया है? एसिमेट्रिक पीसीआर। इट इज़ यूजफुल व्हेन amplification of only one of the two complementary strands is needed, such as in sequencing and hybridization proving। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है वो डीएनए सीक्वेंसिंग में किया जाता है और हाइब्रिडाइजेशन में किया जाता है। नंबर 6 है कोल्ड पीसीआर। कोल्ड पीसीआर को एम्प्लीफिकेशन एट लोअर डीनेचुरेशन टेम्परेचर बेस्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। को एम्प्लीफिकेशन एट लोअर डीनेचुरेशन टेम्परेचर बेस्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज द, in short, cold PCR is a novel form of PCR that selectively amplifies low abundance DNA variants from mixture of wild types and mutants containing sequences irrespective of the mutation type or positions on the amplicon। तो यहाँ पर इसका DNA वेरिएंट्स में है ना, लो एवेंडेंस में डीएनए वेरिएंट्स को प्राप्त करने के लिए, उनका एम्प्लीफिकेशन करने के लिए इस पीसीआर का यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच म्यूटेशन कंटेनिंग डीएनए इज प्रिफरेंशियली मेल्टेड ओवर वाइल्ड टाइप। तो जहाँ म्यूटेशंस होते हैं अधिक टेम्परेचर पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर, वहाँ पर इसके मॉडिफिकेशन में इसका यूज़ जो है वो डीएनए के मेल्ट करने के लिए किया जाता है। पीसीआर प्लेज ए वाइटल रोल इन द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस इन ऑन्कोलॉजी स्पेसिमेंस, स्पेशली इन हेट्रोजीनस ट्यूमर्स एज वेल एज बॉडीली फ्लूइड्स। तो इसका यूज़ जो है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, यानी ऑन्कोलॉजी के फील्ड में म्यूटेशंस जो आते हैं उन पर इसका काम किया जाता है। दिस पीसीआर ऑल्सो assist in the assessment of residual diseases after surgery or chemotherapy and disease staging and molecular profiling for prognosis or tailoring therapy to individual patients। तो ऑन्कोलॉजी में इसका यूज़ जो है वो कई तरीके से किया जाता है। नंबर 7 है कॉलोनी पीसीआर। कॉलोनी पीसीआर is a method in which where identification of DNA of interest inserted into the plasmid is obtained by designing the inserted DNA specific primers। यहाँ पर जो प्राइमर्स यूज़ किए जाते हैं उनको क्या किया जाता है?
डिज़ाइन किया जाता है, यानी उन प्राइमर्स को तैयार करने के लिए हमको स्पेसिफिक डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया जाता है और डिज़ायर्ड डीएनए जो है, जो हमने डिज़ाइन किया है, उनके स्पेसिफिक प्राइमर्स बनाए जाते हैं। उन स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स का यूज़ जो है वो डीएनए के पीसीआर में डीएनए को बनाने के लिए किया जाता है। The bacterial colony containing the plasmid can directly be amplified using two sets of primers. The main application of colony PCR is in the identification of correct ligation and insertion of inserted DNA into bacteria as well as yeast plasmid. तो मेन एप्लीकेशन क्या है कॉलोनी पीसीआर का कि सबसे पहले तो डिज़ायर्ड डीएनए को आइडेंटिफाई करना, उस डिज़ायर्ड डीएनए को किसी भी प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद में उसका डीएनए लाइगेस के द्वारा लाइगेशन करना और उस डीएनए को लगातार बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई करना और उस मल्टीप्लाइड डीएनए का यूज़ जो है वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर के द्वारा पीसीआर टेक्निक में उसका यूज़ करना। तो ये है कॉलोनी पीसीआर। अगला है कन्वेंशनल पीसीआर। The polymerase chain reaction is a test tube system for DNA replication which allows a target DNA sequence to be selectively amplified several million folds in just a few hours. PCR enables the synthesis of specific DNA fragments using a DNA polymerase enzyme which takes part in the replication of the cellular genetic material. Conventional PCR is applied in selective DNA isolation, amplification and quantification of DNA, medical and diagnostic approaches, infectious disease diagnosis, forensic studies and research areas. तो ये जो PCR है ये कॉमनली जो यूज़ किया जाता है डीएनए को प्राप्त करने के लिए वह कन्वेंशनल पीसीआर है, जो टारगेट डीएनए सीक्वेंसेस को लगातार एम्प्लीफिकेशन करता है और उनकी कॉपीज़ जो है मल्टीपल कॉपीज़ या मिलियन फोल्ड कॉपीज़ जो है वो बनाता है। और इसका जो इस्तेमाल है वो मेडिकल डायग्नोस्टिक अप्रोचेस में, इन्फेक्शियस डिजीज़ डायग्नोसिस में, फॉरेंसिक स्टडीज़ में और रिसर्च एरियाज़ में किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिजिटल पीसीआर। Digital PCR is a quantitative PCR technology that provides a sensitive and efficient way for the measurement of the amount of DNA और RNA present in a sample. तो इसका जो यूज़ है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, एफिशिएंट है, लेकिन इसका जो मेज़रमेंट है वो DNA और RNA कितना प्रेजेंट है सैम्पल के अंदर उसमें किया जाता है। फॉर Digital PCR, the initial sample mix is divided into a large number of individual wells prior to the amplification step, resulting in either target sequence being present in each well or not. जैसा कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर करते हैं कि हम एक वेल के अंदर हम क्या डालते हैं, एक नोन सैंपल डालते हैं, प्रोटीन्स का हो सकता है, डीएनए का हो सकता है, आरएनए का हो सकता है, और बाकी वेल्स के अंदर हम क्या डालते हैं, अननोन सैंपल्स डालते हैं। तो अननोन सैंपल्स जब नोन सैंपल्स से मैच करते हैं तो हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसमें भी इसी प्रकार से जो है एम्प्लीफिकेशन किया जाता है और ईच वेल में जो डीएनए है उसको हम पता कर सकते हैं कि ये उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Digital PCR is used to determine the total numbers of DNA and RNA viruses, bacteria and parasites in a variety of clinical specimens, mainly when a well-calibrated standard is not available. तो यहाँ पर हम इसका इस PCR का जो यूज़ है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ DNA और RNA वायरसेस को डिटरमाइन करने में किया जाता है, बैक्टीरिया को डिटरमाइन करने में किया जाता है और पैरासाइट्स की वैरायटी को डिटरमाइन करने में किया जाता है। अगला आता है फास्ट साइक्लिंग पीसीआर। फास्ट साइक्लिंग पीसीआर इज ए पीसीआर बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पीसीआर प्रोडक्ट्स विद सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड साइक्लिंग टाइम। तो ये पीसीआर जो है वो पीसीआर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर है, एम्प्लीफिकेशन करता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए और जो सिग्निफिकेंटली जो साइक्लिंग होती है डीएनए बनाने का जो टाइम होता है उसको कम करता है। द प्रिंसिपल इन दिस प्रोसेस इज द सेम एज कन्वेंशनल पीसीआर, द ओनली डिफरेंस बीइंग द टाइम ऑफ एम्प्लीफिकेशन। तो प्रोसेस जो है जो हमारा कन्वेंशनल पीसीआर है जो जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं
टेक्निक सेम उसी की तरह है, लेकिन केवल यहाँ पर क्या है, हमारे समय की थोड़ी बचत हो जाती है। फास्ट साइक्लिंग पीसीआर इज एसेंशियल फॉर प्रोसेसेस रिक्वायरिंग क्विक साइकिल्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द रैपिड डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस एंड म्यूटेशंस। तो हमारे जब समय की बचत होती है तो हम जल्दी से हम डिजीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं या म्यूटेशंस का भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हाई फाइडेलिटी पीसीआर। हाई फाइडेलिटी पीसीआर इज ए मॉडिफाइड पीसीआर मेथड that utilizes a DNA polymerase with a low error rate and results in a high degree of accuracy in the replication of the DNA of interest। तो यहाँ पर इस PCR में DNA polymerase में जो कमी आती है, जो भी एरर दिखाई देती है, उसका रिजल्ट जो है बहुत कम होता है और हमको बहुत अधिक एक्यूरेसी जो है वो इस PCR से मिलती है, जिससे हम DNA का डायग्नोसिस जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। Such enzymes have a significant binding affinity for the correct nucleoside triphosphate during amplification. High fidelity amplification is essential for experiments whose outcome depends upon the correct DNA sequences like cloning, SNP analysis, NGS application। तो इसका जो यूज़ है वो एक तो सबसे पहले हम DNA सीक्वेंसेस का जब हम क्लोनिंग करते हैं तो वो करेक्ट सीक्वेंसेस का पता लगाने के लिए कर सकता है। ये पीसीआर जो है वो सीक्वेंसिंग को करेक्ट करता है, यानी सीक्वेंसिंग की क्लोनिंग में अच्छी भूमिका निभाता है। स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन्स के एनालिसिस में भी इसका विशेष योगदान रहता है। नेक्स्ट आता है हाई रिजोल्यूशन मेल्ट पीसीआर। इट इज़ ए ह्यूजली पावरफुल टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एपीजेनेटिक डिफरेंसेस इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए सैम्पल्स। तो इसका जो यूज़ है वो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसमें म्यूटेशंस को बहुत आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म और एपीजेनेटिक डिफरेंसेस का डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर पता लगाया जा सकता है। इट इज़ मैसिवली कॉस्ट इफेक्टिव वर्सेस अदर जीनोटाइपिंग टेक्नोलॉजी सच एज सीक्वेंसिंग एंड टैकमैन SNP टाइपिंग। दिस मेक्स इट्स आइडियल फॉर लार्ज स्केल जीनोटाइपिंग प्रोजेक्ट्स। तो बहुत एक्यूरेट है ये, और टैकमैन SNP टाइपिंग, स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन्स की जो टाइपिंग होती है उसकी सीक्वेंसिंग करने में ये टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी विशेष भूमिका निभाती है। इट इज़ फास्ट एंड पावरफुल, दस एबल टू एक्यूरेटली जीनोटाइप ह्यूज नंबर्स ऑफ सैम्पल्स इन रैपिड टाइम। तो काफ़ी सारे सैम्पल्स को ये बहुत पावरफुल तरीके से और बहुत एक्यूरेट तरीके से जो है करता है। It is simple with a good quality HRM assay. Powerful genotyping can be performed by non-geneticists in any laboratory which access to an HRM capable real-time PCR machine. Next है hot start PCR. Hot start PCR is a novel form of conventional polymerase chain reaction that reduces the occurrence of undesired products and formation of primer dimers due to non-specific DNA amplification at room temperature। तो ये PCR जो है वो काफ़ी अच्छा है और करीब करीब कन्वेंशनल पॉलीमरेज चैन रिएक्शन PCR की तरह ही ये वर्क करता है। यहाँ पर जो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका अकरेंस जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है और प्राइमर्स बन जाते हैं। इन प्राइमर्स के ऊपर डाइमर्स का फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, जिससे DNA जो है रूम टेम्परेचर पर अच्छे से एम्प्लीफाई हो जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हॉट स्टार्ट PCR इज द सेपरेशन ऑफ वन और मोर रिएजेंट्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्स until the mixture reaches the denaturation temperature upon heating. Hot start PCR significantly reduces non-specific binding, the formation of primer dimers, and often increases product yields. It also requires less effort and reduces the risk of contamination. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अधिक मात्रा में बनते हैं, प्राइमर डाइमर्स का फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से होता है, और दूसरा क्या है, इसमें एफर्ट जो है वो कम लगता है और कंटेमिनेशन का जो रिस्क है वो भी कम होता है। नेक्स्ट है इन सीटू PCR. In situ polymerase chain reaction is an effective method that detects minute quantities of rare nucleic acid sequences in frozen or paraffin embedded
cells or tissue sections for the compartmentalization of those sequences within the cells। तो यहाँ पर जो ये PCR क्या काम करता है, एक तो जो फ्रोज़न सैम्पल्स होते हैं जिनको फ्रोज़न करके ऑलरेडी लेबोरेटरी में रखा गया है, उन पैराफिन में एम्बेडेड करके उनके सेक्शंस जो हैं बनाए जाने के लिए रखे गए हैं, उन फ्रोज़न सैम्पल्स का ये बहुत अच्छे से एम्प्लीफिकेशन करता है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स टिश्यू फिक्सिंग दैट प्रिजर्व्स द सेल मॉर्फोलॉजी which is then followed by the treatment with proteolytic enzymes to provide an entry for the PCR reagents to act on the target DNA। तो जो सेल्स प्रिजर्व किए गए हैं स्टडी के लिए, उनकी मॉर्फोलॉजी को ज्ञात करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का जो प्रोवाइड करते हैं उनकी एंट्री किस तरीके से है, उसको ये PCR जो है वो अच्छे से उन पर वर्क करता है। In situ PCR is applicable for the diagnosis of infectious diseases, quantification of DNA, detection of even small amount of DNA, and is widely used in the study of organogenesis and embryogenesis। तो ये इसके uses हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ये आपको सारा इसमें दिखाया गया है कि quantification of DNA, detection of even small amount of DNA, और widely used in the study of ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। अगला है इंटर सीक्वेंस स्पेसिफिक PCR। इंटर सीक्वेंस स्पेसिफिक PCR इज ए मेथड फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग दैट यूजेस प्राइमर सेलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक सेगमेंट्स रिपीटेड थ्रू आउट ए जीनोम टू प्रोड्यूस ए यूनिक फिंगरप्रिंट। तो इसका इस्तेमाल जो है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग में अधिक किया जाता है, और द टेक्निक यूज माइक्रोसैटेलाइट usually 16 to 25 base pairs long as primers in a single primer PCR reaction targeting multiple genomic loci to amplify mainly the inter-SSR sequences of different sizes। This PCR can be used in genomic fingerprinting, genetic diversity and phylogenetic analysis, genome mapping and gene tagging। इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है 16th नंबर पर इन्वर्स PCR। इन्वर्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज वन ऑफ द मैनी वेरिएंट्स ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज यूज्ड टू एम्प्लीफाई DNA व्हेन ओनली वन सीक्वेंस इज नोन। तो जहाँ पर केवल एक सीक्वेंस का पता है, वहाँ पर उस प्रकार के DNA को एम्प्लीफाई करने के लिए चेन रिएक्शन से यह PCR जो है वो अच्छा वर्क करता है। कन्वेंशनल PCR रिक्वायर्स प्राइमर्स complementary to both terminals of the target DNA, but inverse PCR allows amplification to be carried out even if only one sequence is available from which primers may be designed। Inverse PCR is especially useful for the determination of insert locations of various transposons and retroviruses in the host DNA। तो ये इसका यूज़ जो है वो ट्रांसपोजोन्स को डिटेक्ट करने में, रेट्रोवायरसेस को डिटेक्ट करने में होस्ट DNA के अंदर इसका यूज़ होता है। अब आता है लेट PCR। लेट यानी लीनियर आफ्टर द एक्सपोनेंशियल PCR। लेट PCR is a modification of asymmetric PCR which uses a limiting primer with a higher melting temperature than the excess primer, which maintains reaction efficiency as the limiting primer concentration decreases mid-reactions। Late PCR begins with an exponential phase in which amplification efficiency is similar to that in conventional PCR। Once the limiting primer is depleted, the reaction abruptly switches to linear amplification and the single standard product is continued for many additional thermal cycles। नेक्स्ट है लाइगेशन मीडिएटेड PCR। लाइगेशन मीडिएटेड PCR is a modified form of conventional PCR that is possible with the knowledge of only one end initially and then adding the second end by ligation of a unique DNA linker। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये PCR जो है वो कन्वेंशनल PCR का ही मॉडिफाइड रूप है, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी सीक्वेंस को जोड़ते हैं, लाइगेट करते हैं एक यूनिक DNA लिंकर के साथ में, पहले करते हैं फर्स्ट टाइम और फिर सेकेंड एंड पर फिर हम उसको लाइगेट करते हैं। तो इसलिए हम इसको लाइगेशन मीडिएटेड PCR
कहते हैं। लाइगेशन मीडिएटेड पीसीआर यूटिलाइजेज स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स कॉल्ड लिंकर्स दैट आर इनिशियली लाइगेटेड टू फ्रेगमेंट्स ऑफ द टारगेट डीएनए। तो जहाँ पर इनको जोड़ते हैं उनको हम लिंकर्स कहते हैं। दिस मेथड इज डिप्लॉयड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोम वॉकिंग एंड डीएनए फुटप्रिंटिंग। तो डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोम वॉकिंग और डीएनए फुटप्रिंटिंग में इस टाइप के पीसीआर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज पीसीआर। लॉन्ग रेंज पीसीआर इज ए मेथड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ लॉन्गर डीएनए lengths that cannot typically be amplified using routine PCR methods or reagents. Long range PCR can be achieved by using modified high efficiency polymerase with enhanced DNA binding, resulting in highly processive and accurate amplification of long fragments. This method allows the amplification of more extended targets within a shorter period and with efficient use of resources. अब आता है मिथाइलेशन स्पेसिफिक पीसीआर। मिथाइलेशन स्पेसिफिक पीसीआर इज ए मेथड फॉर द डिटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न्स इन सीपीजी आइलैंड्स। तो डीएनए मिथाइलेशन का एनालिसिस करने के लिए और उसको डिटेक्ट करने के लिए इस पैटर्न का इस्तेमाल जो है वो सीपीजी आइलैंड्स के अंदर किया जाता है। For performing MSP, DNA is modified by and PCR performed with two primers pairs which are detectable methylated and unmethylated DNA respectively. Detection of methylated patterns is essential as excessive methylation of CpG dinucleotides in promoter represses the gene expressions. तो ये gene expressions में promoters जब repress होते हैं वहाँ पर इसका use किया जाता है। नंबर 21 है मिनी प्राइमर पीसीआर। इन न्यू पीसीआर मेथड यूजिंग एन इंजीनियर्ड पॉलीमरेज एंड 10 न्यूक्लियोटाइड मिनी प्राइमर्स इज टर्म्ड मिनी प्राइमर पीसीआर। तो यहाँ पर हमने इसको मिनी प्राइमर क्यों कहा है? केवल 10 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इसमें वर्क करते हैं एज ए प्राइमर। दिस मेथड इज फाउंड टू रिवील नोबल 16S राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंसेस दैट वुड नॉट हैव बीन डिटेक्टेड विद स्टैंडर्ड primers. Mini primer PCR uses a thermostable polymerase enzyme that can extend from short primers 9 or 10 nucleotides. This method allows PCR targeting to smaller primer binding regions and is used to amplify highly conserved DNA sequences such as the 16S ribosomal RNA gene. नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर इज ए कॉमन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ मल्टीपल टारगेट्स इन ए सिंगल पीसीआर टेस्ट रन। इन मल्टीप्लेक्स पीसीआर मल्टीपल प्राइमर्स एंड ए टेम्परेचर मीडिएटेड डीएनए पॉलीमरेज आर यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इन ए थर्मल साइक्लर। तो यहाँ पर हम एम्प्लीफिकेशन के लिए मल्टीपल टारगेट्स यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लेक्स पीसीआर कहते हैं। इसका जो डायग्नोसिस है, इस पीसीआर का जो यूज़ है वो क्या है? एक तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और ये काफ़ी सारी डिजीज़ किससे कॉज हुई हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा उनका डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। नंबर 23 है नैनो पार्टिकल असिस्टेड पीसीआर। नैनो पीसीआर भी कहते हैं इसको। A nanoparticle associated PCR includes small molecular substances comprising of particular physical properties that enhance the reaction. तो यह नैनो पीसीआर जो है वो नैनो पार्टिकल्स के रूप में यूज़ किया जाता है और इसका जो यूज़ है वो है हाई सेंसिटिविटी में, हाई स्पेसिफिसिटी में और हाई सेलेक्टिविटी में, जिससे इसका वाइडली यूज़ किया जाता है वायरस के डिटेक्शन करने के लिए और जीन सीक्वेंसिंग में। 24 है नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर इज ए यूजफुल मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर टेक्नोलॉजी। ये एडवांस है, हमारा जो कन्वेंशनल पीसीआर टेक्नोलॉजी थी उससे ये एडवांस होता है, जिसको हम नेस्टेड पीसीआर कहते हैं। यहाँ पर जो है स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिएक्शन इज एनहांस्ड बाय प्रिवेंटिंग द नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ द 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। 2 सेट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। नेस्टेड पीसीआर जो है वो एम्प्लीफिकेशन में तो काम करता ही है, इसका जो सेकंड राउंड है वो एम्प्लीफिकेशन में काम करता है। सेकंड सेट है प्राइमर का जो टारगेट डीएनए को एम्प्लीफाई करता है और इसका यूज़ जो है फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ में और डिफरेंट पैथोजेंस के डिटेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है।
The technique has higher sensitivity, hence even if the sample contains lower DNA, it can be amplified, which is not feasible in the conventional PCR टेक्निक। तो बहुत छोटे से छोटे बिल्कुल माइन्यूट सैंपल का डिटेक्शन करने के लिए ये पीसीआर जो है वो बहुत अच्छा है, और जो कन्वेंशनल पीसीआर टेक्निक से हम नहीं प्राप्त कर सकते वो इस नेस्टेड पीसीआर से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 25 है ओवरलैप एक्सटेंशन पीसीआर। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्लाइसिंग बाई ओवरलैप एक्सटेंशन or sewing. Overlap extension PCR is a valuable technique that is commonly used for cloning large complex fragments, making edits to cloned genes or fusing two gene elements together. तो ये क्लोनिंग में इसका यूज़ जो है बहुत अच्छा है, और इट क्रिएट्स लॉन्ग डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम शॉर्टर वंस। तो सभी पीसीआर वैसे यही काम करते हैं कि शॉर्टर सैंपल से हम लॉन्गर डीएनए जो है वो बना सकते हैं। तो ये भी उसमें एक ओवरलैप एक्सटेंशन पीसीआर भी लॉन्गर डीएनए फ्रैगमेंट्स को शॉर्टर डीएनए से बनाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर एफिशिएंट जीन क्लोनिंग एंड मल्टीपल साइट डायरेक्टेड लार्ज फ्रैगमेंट्स इंसर्शन, डिलीशन एंड रिप्लेसमेंट। तो जीन क्लोनिंग में इसका जो यूज़ है वो बहुत अच्छा है। इट इज़ प्रूवन यूजफुल फॉर साइट डायरेक्टेड mutagenesis, the creation of chimeric molecules, or even the cloning of large gene segments by splicing together small pieces. 26 नंबर पर है रियल टाइम पीसीआर। इसको हम क्वांटिटेटिव पीसीआर भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव पीसीआर ऑल्सो कॉल्ड रियल टाइम पीसीआर और क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर is a PCR based technique that couples amplification of a target DNA sequence with quantification of the concentration of that DNA species in this reaction. तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कैसे करते हैं? DNA PCR जो है वो DNA को एम्पलीफाई तो करता ही है, एम्पलीफिकेशन करता है टारगेट DNA का जो हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में प्राप्त हुआ है उसको एम्पलीफाई करता है। लेकिन यहाँ पर जो रियल टाइम पीसीआर है वो क्या काम कर रहा है? क्वांटिफिकेशन, यानी कितना कंसंट्रेशन है डीएनए स्पीशीज में, डीएनए का स्पीशीज के अंदर, उस रिएक्शन के अंदर, उसका भी ये पता लगाता है। कन्वेंशनल पीसीआर इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस वेयर द पीसीआर प्रोडक्ट्स आर एनालाइज्ड थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। qPCR facilitates the analysis by providing real time detection of produces during the exponential phase। तो कन्वेंशनल पीसीआर में तो क्या है, टाइम कंज्यूम होता है। पीसीआर प्रोडक्ट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डायग्नोस करते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव पीसीआर है या रियल टाइम पीसीआर है वो इसको क्या करता है, क्वांटिफिकेशन करने के बाद में हमें सैंपल्स जो भी प्राप्त हुए हैं उनका पता लगा देता है कि वो कितना सैंपल्स है उस डीएनए स्पीशीज का रिएक्शन के अंदर, तो उसका भी ये मेजरमेंट कर लेता है। द प्रिंसिपल ऑफ रियल टाइम पीसीआर डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ फ्लोरेसेंट dye. The concentration of the nucleic acid present into the sample is quantified using the fluorescent dye or using the fluorescent labeled oligonucleotides। इससे इसका पता लगा सकते हैं, या तो फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ करते हैं उसका क्वांटिफिकेशन ज्ञात करने के लिए सैंपल में, या फिर फ्लोरेसेंट लेबल्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ करते हैं। This PCR is applied in genotyping and quantification of pathogens, microRNA analysis, कैंसर डिटेक्शन, माइक्रोबियल लोड टेस्टिंग एंड जीएमओस डिटेक्शन, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रिपीटेटिव सीक्वेंस बेस्ड पीसीआर। रिपीटेटिव सीक्वेंस बेस्ड पीसीआर इज ए मॉडिफाइड पीसीआर टेक्नोलॉजी that uses primers that target non-coding repetitive sequence interspersed throughout the bacterial genome. Main application है PCR का molecular strain typing of different bacteria. It is also used for epidemiologic discrimination of various pathogens. Next है reverse transcriptase PCR. Reverse transcription PCR is a modification of conventional PCR whereby RNA molecules are first converted into complementary DNA molecules that can then be amplified by PCR. तो यहाँ पर क्या होता है कि RNA molecules को पहले DNA में कन्वर्ट किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री DNA में कन्वर्ट किया जाता है और उसको फिर एम्पलीफाई किया जाता है। तो इसलिए इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड PCR इज यूज्ड इन रिसर्च मेथड्स, जीन इंसर्शन, जेनेटिक डिजीज डायग्नोसिस and cancer detection.
नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम PCR. This is commonly associated with qPCR forming reverse transcriptase real time PCR. This allows quantification of DNA in real time after the amplification. अगला है RNase H dependent PCR. In the RNase H dependent PCR, the primers contain a removable amplification block on their 3' end. The blocked primer can only perform amplification depending on the cleavage activity of an RNase enzyme during hybridization to the complementary target sequence. Thus, under the activity of RNase H enzyme, the non-specific binding and primer-dimer formation is reduced, enabling effective hybridization. 31st नंबर का PCR है सिंगल स्पेसिफिक प्राइमर PCR. The single specific primer PCR is a PCR based technology that permits amplification of genes of which only a piece of partial sequence information is available. It allows unidirectional genome walking from known into unknown regions of the chromosome. Next है single specific primer PCR. This PCR allows the amplification of double-stranded DNA even when the sequence information is available at one end only. This method, the single specific primer PCR, permits amplification of genes for which only a partial sequence information is available. है ना, तो जहाँ पर partial sequence information available है वहाँ पर ये PCR जो है वो वर्क करता है and allows unidirectional genome walking from known into unknown regions of the chromosome. Next है solid phase PCR. Solid phase PCR is a unique PCR technique that allows amplification of target nucleic acids on a solid support where one or both primers are immobilized on the surface. A freely diffusing DNA target can be captured on the surface and then copied by the polymerase. The free end of the attached copy hybridizes the primer complementary to its sequence and the amplification process can start. 34 नंबर पर PCR आता है suicide PCR. Suicide PCR is commonly used studies where avoiding false positives and ensuring the specificity of the amplified fragment is the highest priority. The method requires the use of any primer combination only once in a PCR, which should not have been used in any positive control PCR reactions. These primers should always target a genomic regions which has never been amplified before using this particular primer or any other set of primers. Suicide PCR is used in paleogenetics studies, which involves an examination of preserved genetic material from the remains of ancient organism. तो जो remains हैं ancient organism हैं, जो material हमको प्राप्त हुआ है या preserved है already, या पैलियोजेनेटिक स्टडीज़ हैं जो जिनको हमें ज्ञात करना है कि वो क्या था क्या नहीं था, उसका DNA को मल्टीप्लाई करके हमें उस चीज़ के बारे में जब पता लगाना होता है वहाँ पर हम ये सुसाइड PCR का यूज़ करते हैं. 35 नंबर पर आता है थर्मल एसिमेट्रिक इंटरलेस्ड PCR, जिसको हम टेल PCR के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ द पावरफुल टूल फॉर द रिकवरी ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स एडजेसेंट टू नोन सीक्वेंसेस. टेल PCR utilizes 3 nested primers in consecutive reactions together with an arbitrary degenerate primer having a low melting temperature so that relative amplification frequencies of specific and non-specific products can be thermally controlled. This method is highly accurate such that the unpurified tail PCR products can be directly sequenced. It is also allow the cloning of full length functional genes. Next है touchdown PCR. Touchdown PCR is a modification of PCR in which the initial annealing temperature is higher than the optimal TM of the primers and is gradually reduced over subsequent cycles until the TM temperature or touchdown temperature is reached. Touchdown PCR increases the specificity of the reaction at higher temperatures and increases the efficiency towards the end by the lowering the annealing temperature. तो दोनों टेम्परेचर पर हायर और लोअर दोनों टेम्परेचर पर ये PCR जो है वो काम करता है.
37 नंबर पर है, लास्ट पीसीआर है ये, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जिसको हम VNTR PCR भी कहते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट मार्कर्स फॉर द इंडिविजुअलाइजेशन इन फॉरेंसिक साइंस। VNTR क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं फॉरेंसिक साइंस के अंदर, इनका इस्तेमाल किया जाता है। In VNTR PCR fragments are amplified that showed little variations within a species but did show differences between species। तो यहाँ पर जो वेरिएशंस हैं स्पीशीज़ के अंदर, छोटे छोटे जो वेरिएशंस हैं उनको ये क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। ये डिफरेंसेस जो हैं जनरली स्पीशीज़ के अंदर पता नहीं चलते हैं, पर इस PCR के द्वारा जब हम डिटेक्ट करते हैं तो ये डिफरेंसेस को बहुत आसानी से पता करने में हमारी मदद करता है। It can successfully amplify from a very small amount of genomic deoxyribonucleic acid by the polymerase chain reaction। बहुत स्मॉल अमाउंट में जो हमको प्राप्त हुआ है DNA, उसको ये बहुत आसानी से एम्पलीफाई कर देता है। Among the genotyping tools, the PCR based variable number tandem repeats analysis represented a promising method for typing M. tuberculosis। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के को ज्ञात करने के लिए इस PCR का जो है बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये रेफरेंसेस हैं एंड सोर्सेस हैं। ये मटेरियल जो है वो काफ़ी इंटरनेट से लिया गया है और ये एक तरीके से टाइप्स ऑफ PCR का कंप्लीट नोट्स हैं और इसको आसानी से हम इसके बारे में याद कर सकते हैं कि कितने टाइप के PCR हैं। तो ये 37 टाइप के PCR हैं जिसका ये सोर्स और रेफरेंसेस जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।